In this session, we are going to discuss about the electrical networks and analysis, its synthesis, and the signals. So we are going to discuss signals and electrical networks, what the electrical circuitries is, what is electrical circuit, and analysis. How we are going to analyze these things. इसका अर्थात ये है कि इस सेशन में जो है इस सत्र में ये पढ़ने जा रहे हैं, ये जानकारी लेने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहे हैं कि सिग्नल क्या है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, और एक जो है कि एनालिसिस, उसका विश्लेषण क्या है, सिंथेसिस क्या है, और ये सारा का सारा कुछ इस एनालिसिस पोर्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस. So what basically initially what we are going to have, these electrical circuits, because every branch and specialization of any electronics as well as electrical, that needs what? That needs some circuitries, that needs some network to operate. For example, in power system, initially the power that is going to generate and then transmit, then distribute, and likewise the power consumer that is going to consume the power for the consumption of for the feeding of the load. It is quite obvious that power should be generated, then transmitted, then distributed, and likewise that has been supplied to the user, either that may be domestic as well as industrial. So and control system, control system, it is also a kind of system, and control system is the system in which there is a network, there is a process input, then process, or we may generally call it to be a system, and output. So it also deals with the circuits, it also deals with the networks. Whatever controller is getting to design, then it is also having some networks also. So, and electronics and signal processing, how the signal is going to process. Let us suppose some voice signal is there. Suppose we are talking, suppose just there is a talk, there is a signal, voice signal, and that has to be transmitted through some medium, that has been transmitted through air or whatsoever medium, and receiver is going to receive the information or the input or the signal which is coming from the input, and in the output also. In input there is a modulation, and in output, in receiving end, there is a demodulation. In transmission, that is called muxing or modulation, and demuxing or demodulation at the receiver end. So it always deals with network circuit. ये सारा का सारा जो है पावर सिस्टम हो या कंट्रोल सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, सिग्नल प्रोसेसिंग होगा, कोई भी चीज होगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, सर्किट और जो उसका विश्लेषण है वो सब जगह काम आता ही होगा, ऐसा कहने का अर्थ है. अब सो व्हाट इज व्हाट, अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है क्या, क्या चीज होती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? व्हाट बेसिकली द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज. तो क्या है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? एक इंटरकनेक्शन है. कैसा कनेक्शन है? सारे के सारे इलेक्ट्रिकल जो भी एलिमेंट्स हैं, वो आर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टर और लाइक कैपेसिटर और इंडक्टर, और फिर उसके बाद वोल्टेज और करंट सोर्सेज एक्सेट्रा. इन सभी को एनर्जी सोर्सेज जिन्हें कहते हैं, दैट मे बी आइदर करंट सोर्सेज, दैट मे बी वोल्टेज सोर्सेज व्हाटसोएवर, एंड दैट मे बी एक्टिव वोल्टेज सोर्सेज, दैट मे बी डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज. तो ये सारे के सारे, चाहे वो स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, या निर्भर हो किसी अन्य क्वांटिटी पर. सो इट मींस दैट एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है इंटरकनेक्शन है सर्किट एलिमेंट्स का, जिसमें रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, वोल्टेज है और करंट सोर्स, ये सभी होता है. इन सब का एक बंधा हुआ रूप, जिसमें इनपुट होता है, इनपुट एज एन करंट होगा या सप्लाई होगा या वोल्टेज के रूप में होगा. वोल्टेज भी अगर होगी तो वही तो करंट पैदा होगी, उसके बाद करंट का फ्लो होगा, इसका मतलब पावर का फ्लो होगा. और जहां पर भी लोड है वहां पर वो पावर जो है, वो करंट जो है, वो कंजम्पशन होने के लिए पहुंचेगी थ्रू दैट नेटवर्क, व्हाटएवर डिजाइंड इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किटरी. अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रेजिस्टर क्या होता है? अब रेजिस्टर होता है कि जो करंट का अपोज करे,
that element which is going to oppose the flow of the current that is assumed to be resistor. भाई जो करंट के पाथ में हिंड्रेंस पैदा करे उसे रेजिस्टर कहते हैं, और रेजिस्टर की जो ऐसी प्रॉपर्टी है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। मेजर करते हैं ओम में। लिखने के लिए आने वाले जो भी सेशंस होंगे उसमें विजुअलाइजेशन भी दिखाएंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे और बहुत सारा कुछ होगा, चर्चाएं होंगी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे इंडस्ट्री में, कैसे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कैसे ये चीजें लगती हैं और क्या क्या शोध है, क्या क्या रिसर्च इनोवेशन हो सकता है, ऐसा पता चलेगा, बताएंगे। तो रेसिस्टेंस का फिलहाल ये मीनिंग है कि जो भी करंट के पाथ में एक अपोजिशन होगा, एक प्रतिरोध होगा करंट के पाथ में, उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। ओम में मेजर करेंगे, यूनिट होती है ओम। रेसिस्टर की। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर क्या होता है कि इनिशियली कैपेसिटर अपने आप से करंट को जाने देगा, बाईपास करने, और जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो इट विल वर्क एज अ डाइलेक्ट, वो एक इंसुलेटर की तरह, कुचालक की तरह वर्क करेगा और अब अपने आप से इजीली करंट को पास नहीं होने देगा, और अपने इनिशियल स्टेज में तो करंट को पास करेगा लेकिन फाइनल स्टेज में जो है इन करंट को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से होता है कैपेसिटर, क्योंकि एक बार चार्जिंग फेज होता है, व्हाइल कंप्लीटिंग द फुल चार्जिंग कैपेसिटर हैज टू डिस्चार्ज, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। अब उसके बाद कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है प्रॉपर्टी, उसको सी, कैपिटल सी से दिखाते हैं और उसको फैराड में नापते हैं, यूनिट फैराड होती है। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर को एल, कैपिटल एल जो होता है इंडक्टेंस होता है, और इंडक्टर क्या होता है कि अपने अंदर जो एनर्जी होता है, इंडक्टर अपने अंदर जो एनर्जी है उसको मैग्नेटिक लॉकिंग के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक इफेक्ट के रूप में इकट्ठा रखता है और समय आने पर रिलीज करता है वेरेवर नेसेसरी। और इंडक्टर जो है अगर उसमें करंट को फ्लो कराएंगे तो इनिशियली करंट के सडन चेंज को अपोज करता है इंडक्टर। इंडक्टर विल अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट that is measured in henries, the unit of इंडक्टर इज हेनरी। और जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, दे बोथ आर सपोज टू बी इनर्शियल एलिमेंट। कैसे एलिमेंट है? इनर्शियल एलिमेंट। इसका मतलब दे आर हैविंग इनर्शिया। और कैपेसिटर इज इनर्शियल टुवर्ड्स वोल्टेज, चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। अगर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी कैपेसिटर में वोल्टेज की, तो कैपेसिटर इस चीज को इनिशियली एग्री नहीं करेगा, और ऐसे ही वोल्टेज जो है इनिशियली जो है करंट के जो अपोजिशन है उसको एग्री नहीं करेगा। हालांकि फाइनली जो है वो सेटल हो जाएगा, स्टेडी होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो इंडक्टर और कैपेसिटर है इनिशियली दे आर हैविंग व्हाट? इनर्शियल एलिमेंट। इनर्शिया मतलब होता है किसी एक प्रॉपर्टी के द्वारा जब सडन चेंज ऑफ स्टेट का जो है अपोजिशन, दैट इज सपोज टू बी व्हाट? इनर्शिया। लेट अस सपोज कोई स्टेट, किसी स्टेट में, टर्न ऑफ स्टेट में, अब टर्न ऑन स्टेज में आना है, कंडक्शन होना है नॉन कंडक्शन से, तो जितनी देरी से होगा उतना ज्यादा इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब एक आलस्य, दैट इज अ लेथार्जिसिटी। जो जितनी बड़ी बॉडी होगी कैपेसिटी में, साइज में, उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होता होगा। इसीलिए इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे बोथ आर termed to be as the what? The inertial element. And inductor is having the inductance property quite what? Measured in terms of energy, and capacitor is having what? Capacitor is having capacitance that is measured in farad. What is voltage and current source? Sources which are going to deliver some energy, that are supposed to be sources. Source मतलब होता है स्रोत, किसी ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले जो स्रोत होते हैं वो ऊर्जा स्रोत होते हैं। दैट में बी वोल्टेज सोर्स, दैट में बी करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स में भी दो तरीके के सोर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब डिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं वो डायमंड शेप से शो किए जाते हैं, चाहे वो करंट सोर्स होगा या वोल्टेज सोर्स होगा। और डिपेंडेंट अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी चाहे वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट होगा तो वो करंट पे डिपेंड हो सकता है कि कहीं सर्किट में कोई करंट बह रही है और उसके ही अकॉर्डिंग वो सोर्स तय है, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है। सो इट मींस दैट ये भी क्वाइट ऑब्वियंट है कि वोल्टेज और करंट सोर्स भी होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वोल्टेज, क्योंकि अगर इफ यू आर डूइंग व्हाट द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किटरी वी आर डूइंग, we are analyzing, realizing, solving, implementing, evaluating and examining the what electrical networks, likewise the electrical circuit, then definitely it is quite obvious to know, it is quite obvious to know what the source is. source का मतलब क्या होता है कि एनर्जी को देने वाला, है ना। और ये जानना जरूरी होता है कि अगर वो वोल्टेज है तो वोल्टेज क्या है,
करंट क्या है? करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. आई इज इक्वल टू आई विच इज करंट. करंट को शो करते हैं आई से और एम्पियर उसकी यूनिट होती है. तो इट मींस दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. इसका मतलब चार्ज जितनी भागा दौड़ी करेंगे उतना ही करंट होगा. तो इसका मतलब I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. क्यू इज द चार्ज विच इज शोन इन कूलम. तो इसका मतलब D अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर डी क्यू अपॉन डी टी है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जितना ज्यादा चार्ज मोबिलाइज होंगे मतलब भागादौड़ी करेंगे और उनमें मोशन होगा तो that is the symbolization and indication of the flow of the current. And current is measured in amperes. वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक फोर्स है, एक बल है. वोल्टेज इज दैट पोटेंशियल बाय विच द करंट इज गेटिंग टू इंड्यूस. जब तक वोल्टेज नहीं होगा करंट नहीं पैदा हो सकती है. तो इसका मतलब क्या है कि फॉर द फ्लो ऑफ द करंट इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव द वोल्टेज. लेकिन वोल्टेज इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकती है. देयर इज नो नीड टू हैव अ करंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज. वोल्टेज एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक पोटेंशियल एक जमा हुआ रूप है और उसी का काइनेटिक रूप जो है, उसी का जो मोशन रूप है दैट इज करंट. तो इसका मतलब वोल्टेज वो फोर्स है जो चार्जेस को धक्का दे रहा है मूव करने के लिए, ताकि और अगर कहें तो करंट को बहाने के लिए जो फोर्स है वही तो है वोल्टेज. तो इसका मतलब अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वहां पर वोल्टेज अगर आइडियल कंडीशन है तो वोल्टेज क्या होगी? जीरो होगी या बहुत कम होगी और करंट मैसिव अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो. इसीलिए कभी बहुत सारे अखबारों में देखते हैं कि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया वहां. इसका मतलब वहां पर इंसुलेशन फेलियर हो गया, वहां पर पावर प्रोडक्शन जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे फ्यूजेस हैं, सर्किट ब्रेकर्स हों और जिस भी तरीके के इंसुलेशन लगे होंगे, चाहे वो प्राइमरी प्रोडक्शन हो सेकेंडरी प्रोडक्शन हो, मतलब प्राथमिक सुरक्षा हो या द्वितीयक सुरक्षा हो, जितनी भी है वो दैट इज गोइंग टू रप्चर. We will discuss it all in high voltage and extra high voltage, ultra high voltage engineering. So in this regard, what we are going to do is voltage is nothing but the force which is going to produce, which is going to energize, which is going to have a path for the flow of the current. Voltage है तभी current है. अब जैसे EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स कि तुम भागो दौड़ो और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो वही करंट है. तो इसीलिए अगर देयर वुड बी नो ईएमएफ देयर इज नो करंट. और ईएमएफ है वो भी वोल्ट में नापते हैं, वोल्टेज को भी वोल्ट में नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल को भी वोल्ट में नापते हैं. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को जानने से पहले ये बहुत जरूरी होता है जानना कि वोल्टेज क्या, करंट क्या, पावर क्या है, डायरेक्ट सर्किट क्या, डीसी. डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना करे, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स वैल्यू. एसी क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज कर जाए समय के अनुसार, टाइम के अनुसार. देन दैट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज सपोज टू बी एसी, मींस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. अब क्या है? वी आर गोइंग टू डिस्कस आल्सो द बेसिक एलिमेंट्स एंड द लॉज लाइक ओम्स लॉ. What is Ohm's law? Ohm's law is supposed to be that when pressure and temperature would remain constant, humidity is remaining constant, whatever the physical parameter assumed is supposed to be constant at that time, the current in any of the conductor or material, conducting material, that is directly proportional to voltage. जैसे voltage होगा उसके ही proportional current होगी. Also V is directly proportional to I. We may say V is equal to I into R. So for that sake, R is the proportionality constant, which is come after the proportionality. So Ohm's law is nothing but showing the relationship between voltage and current. That is a linear relationship between the voltage and the current. Ohm's law holds also for superposition principle. तो इसका मतलब अगर कोई भी लीनियर सर्क्यूट है तो इट मस्ट बी देयर टू होल्ड द Ohm's law. So what is Kirchhoff's law? Kirchhoff's law is also supposed to be like KCL and KVL, means Kirchhoff's current law, which is also called point law, which is also called node law, which is also called junction law, which is also called Kirchhoff's first law. इतने सारे नाम है Kirchhoff's current law के. Means summation of all the current in a node or a junction is supposed to be zero. KVL क्या है? KVL is called Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's potential law, Kirchhoff's mesh law, Kirchhoff's network law, Kirchhoff's second law. इतने सारे नाम है KVL के. तो किरचॉफ ने लॉ दिया और बोला केवीएल में कि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड ईएमएफ इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू जीरो. ये बोला. तो इसका मतलब किरचॉफ्स इन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ओपाइन सम ऑफ द थिंग्स दैट इन किरचॉफ्स करंट लॉ समेशन ऑफ ऑल द करंट होल्ड्स टू बी जीरो in any node or in any junction.
in Kirchhoff's voltage law, summation of all the voltages and EMF is treated to be as the zero in a loop path or a network in a junction, also in a what, in a network, in a closer circular trajectory or geometry. KVL, summation of all the voltage and EMF is equal to zero. So what is power? Power, if power is what, supposed to be DC power, also in DC circuit there is power. P is equal to voltage into current, P is equal to V into I, that P is equal to V I square R. That is also power, that is measured in terms of watts. What is the SI unit or the standard unit of power? और अगर if AC पावर, अगर AC पावर होगी तो क्या होगा, अगर अल्टरनेटिंग करंट में पावर देखेंगे तो देयर वुड बी अ कॉम्प्लेक्स पावर, S is equal to P plus JQ, S is equal to V into I conjugate. So it means that P is equal to active power or real power, P is equal to VI cos phi. What is Q? Reactive power or compensatory power, Q is equal to VI sin phi. So that is measured in terms of war, and P is measured in terms of what? So it means that there is some of the what, power. So there are some element like resistance, inductance, capacitance, as we have discussed. We will discuss this thoroughly. No, in series and parallel combination. Network, electrical network and electrical circuit is also having series and parallel connection. In series connection, what is the R equivalent, what is the resistance equivalent, what is the inductance equivalent, what is the capacitive, we will discuss. We will also discuss the network theorems. Network theorems here means what? A theorem portion. It means that what Thevenin theorem said, what superposition theorem said. Superposition theorem को पढ़ेंगे, Thevenin theorem को पढ़ेंगे, Norton theorem को पढ़ेंगे. और superposition theorem में जैसे एक से ज्यादा अगर एनर्जी सोर्स हैं तो वो सारे के सारे जब लगेंगे और इंडिविजुअली जब ट्रीट करेंगे तो समेशन को बराबर होना पड़ेगा, ऐसा कुछ पढ़ेंगे. और ये सभी जो है बाइलेटरल लीनियर सर्किट में ट्रीट करेंगे. बाइलेटरल सर्किट वो होता है जिसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में चेंज करे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में सर्किट अगर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन की ओर फ्लो करे तो किसी भी जो एलिमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज में अगर कोई बदलाव नहीं आता तो वो बाइलेटरल, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब साइड, दोनों साइड से अगर करंट फ्लो कर सकती है तो इसका मतलब दैट इज सपोज टू बी बाइलेटरल सर्किट. सो सुपरपोजिशन थ्योरम है. थेवेनिन थ्योरम में सीरीज इक्विवेलेंट बनता है, नॉर्टन थ्योरम में पैरेलल इक्विवेलेंट बनता है. और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहते हैं कि जो सोर्स है यानी जो जनरेशन जहां पावर का हो रहा है वहां से जहां पे पावर की लोड की खपत होगी, लोड पर जहां पर पावर की खपत होगी वहां तक अधिक से अधिक पावर कैसे पहुंचेगा, जिस थ्योरम ने बोला वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है. मिलमन्स थ्योरम, रेसिप्रोकेटरी थ्योरम, टेलीगन्स थ्योरम, कंपनसेटरी थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ये सारे के सारे थ्योरम जो है पढ़ने जा रहे हैं. इसके साथ साथ मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं. मतलब केवीएल केसीएल को कैसे मैश एनालिसिस एंड नोड एनालिसिस में पढ़ेंगे. जैसे कंडक्टेंस क्या होता है भाई, किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा ऑन होना मतलब कंडक्ट करना, चालू होना, काम करना, वो कंडक्टेंस कहलाता है. और इसीलिए जो है टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे. टू पोर्ट नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक पोर्ट इधर से हो, एक पोर्ट इधर से हो. टू पोर्ट, दो छोर हो उसके. अब टू पोर्ट होगा तो क्या होगा, कितने पैरामीटर होंगे, 4 पैरामीटर होंगे ना. कोई भी मैट्रिक्स बनेगी तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब 2 रो 2 कॉलम. 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है. तो कितने एलिमेंट होंगे, हर एक टू पोर्ट नेटवर्क पे 4 एलिमेंट होंगे. अब टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क हैज इनपुट एज वेल एज आउटपुट टर्मिनल. तो कैसे छोड़ोगे, एक इनपुट टर्मिनल होगा, कुछ इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होंगी, चाहे वो वोल्टेज हो, वोल्टेज करंट हो, करंट हो या करंट वोल्टेज हो, इस तरीके की होंगी. और आउटपुट टर्मिनल पे भी 2 क्वांटिटी होंगी. और बीच में जो है जो सिस्टम है, जो पूरा नेटवर्क है, उसमें 4 तरीके के पैरामीटर होंगे. अब टू पोर्ट नेटवर्क जो है कहां यूज होता है, एम्पलीफायर्स में. एम्पलीफायर मतलब किसी चीज को बढ़ाना, बूस्टिंग करना, किसी इंफॉर्मेशन वैल्यू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को बूस्ट करना, बढ़ाना, एम्पलीफिकेशन करना. फिल्टर मतलब कोई चीज छानना, नॉइस को हटाना, एटेन्युएशन करना, किसी चीज को जिसकी जरूरत नहीं उसको फिल्टर आउट करना. और ट्रांसमिशन लाइन मतलब होता है बहाव करना, किसी चीज का बहाना. तो ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा लॉस कैलकुलेशन का भी करते हैं, इंटरफेरेंस का भी कैलकुलेशन करते हैं, ये सब चीजें वो होती हैं. और पैरामीटर टाइप में टू पोर्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस. जेड मतलब इंपीडेंस. और जेड क्या होता है, इंपीडेंस मतलब जैसे डीसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है करंट का पोजीशन, एसी सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर के द्वारा और कैपेसिटर के द्वारा, तीनों के द्वारा जो कलेक्टिव अपोजिशन होता है इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज व्हाट जेड मतलब इंपीडेंस. ऐसे एडमिटेंस होता है वाई पैरामीटर.
वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर होता है हाइब्रिड पैरामीटर, और एबीसीडी पैरामीटर होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी है Z12 इज इक्वल टू Z21, Z12 इज इक्वल टू Z22, ये सब। और इसके साथ साथ जो है एसी सर्किट एनालिसिस है कि अब एक बात है कि जब कभी भी एसी सर्किट को याद करो तो फेजर्स को याद करना, उसमें कभी भी एल्जेब्रिक सम जैसे 2 + 3 5, 5 + 5 10 ऐसा नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, उसमें फेजर एडिशन होता है, कंपोनेंट का एडिशन होता है एसी सर्किट में। तो हमेशा याद रखेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है, I = I0 sin ओमेगा टी, V = V0 sin ओमेगा टी, मतलब जो हर एक इंस्टेंट में डिफाइन हो रही है इस तरीके की जो भी चीज है वो होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। रेजोनेंस क्या है, दो तरीके के रेजोनेंस है, सीरीज और रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस जो है वो बैंड पास रेजोनेंस है, पैरेलल रेजोनेंस जो है वो बैंड रिजेक्ट रेजोनेंस है। ट्रांजिएंट एनालिसिस है, जैसे कोई भी इनपुट होता है तो उसे एक्साइटेशन कहते हैं, आउटपुट होता है तो उसे रेस्पॉन्स कहते हैं। तो अगर किसी भी मशीन को खुलना है या किसी भी लोड को, नेटवर्क इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर ऑपरेट होना है, उसमें सप्लाई जानी है, करंट जाना है, तो उसके बाद उसमें एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा, एक स्टेडी स्टेट, मतलब शुरू शुरू में उथल पुथल होगी क्योंकि एनर्जाइजेशन हो रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे सेटलमेंट होगा और स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, मतलब स्थिर अवस्था में आ जाएगा, स्टेबलाइज्ड अवस्था में। तो इसीलिए अगर वो आरएल मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सर्किट होगा, आरसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का होगा, आरएलसी मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट होगा, तो ऐसे समय पर क्या कुछ होगा ये सब भी इसमें पढ़ेंगे। ओवर डैम्पिंग मतलब हमेशा ऑसिलेशन होना, अगर वो क्लोजिंग होते होंगे तो अंडर कहलाएंगे, खुलते हुए होंगे बढ़ते रहेंगे तो ओवर कहलाएंगे। और क्रिटिकली डैम्पिंग में हमेशा क्रिटिकल डैम्पिंग की रेशियो, क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट जीटा क्या होता है, 1 होता है। यूनिटी मतलब क्रिटिकली अगर मैनेज्ड होंगे तो 1 होंगे। तो ऐसे कपलिंग सर्किट होते हैं, म्यूचुअल कपलिंग, सेल्फ कपलिंग, मतलब एक सर्किट की वजह से दूसरे सर्किट में कोई वोल्टेज की वजह से करंट पैदा होना या कुछ और पैदा हो जाना। तो इस तरीके से अगर किसी एक का प्रभाव, एक इफेक्ट का प्रभाव दूसरे सर्किट पर पड़ रहा है तो म्यूचुअल है, अगर इंडिविजुअली है तो सेल्फ इंडक्टेंस है। और एक लेंजेस लॉ होती है, लेंजेस लॉ मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज को E = -d∅/dt, मतलब जो कॉज जिस भी को भी कंसीक्वेंस को पैदा कर रहा है तो वो कंसीक्वेंस ही उसके अपने कॉज को पैदा करने वाले कारण का विरोध कर रहा है, तो इसीलिए वो लेंजेस लॉ कहलाता है। पास फिल्टर है लो पास, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप यानी नॉच फिल्टर। ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी में इंसिडेंट मैट्रिक्स, लूप मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स और ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, ये सब टाइम कांस्टेंट और पढ़ेंगे। अगर आरएल सर्किट है तो आर इंटू इंडक्टेंस ही उसका क्या है, टाइम कांस्टेंट है। आरसी सर्किट है आर इंटू सी, तो ये टाउ इज इक्वल टू, और टाउ इज इक्वल टू L/R इन आरएल सर्किट। पावर पढ़ेंगे और पावर मैक्सिमम पावर, और जो है कि अगर सिग्नल वाला जो पोर्शन देखें, सिग्नल वाला अगर पोर्शन देखें तो सिग्नल वाले पोर्शन में जो भी चीजें डिस्कस होंगी, और वो ये है कि सिग्नल और सिस्टम वाले में, तो सिग्नल होता है तो सिग्नल क्या होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो ही सिग्नल कहलाता है। और जो है अगर देखा तो बेसिक प्रकार यूनिट डबलेट सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल, गेट सिग्नल है, स्टेप सिग्नल है। अब टेस्ट सिग्नल होते हैं जैसे इंपल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, ऐसे होता है कि अगर इंपल्स सिग्नल मतलब t = 0 पे डिफाइन होता है, अगर t = पॉजिटिव पे अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो स्टेप सिग्नल होता है। अगर रैंप सिग्नल है, लीनियर रिलेशन है, ऐसे सीधा लाइन की तरह है तो रैंप सिग्नल। मतलब इंपल्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यूनिट स्टेप बनेगा, यूनिट स्टेप का स्टेप बनेगा, और स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे तो रैंप बनेगा, रैंप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यूनिट स्टेप बनेगा, और स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंपल्स बन जाएगा। इंपल्स मतलब क्षण में डिफाइन होने वाला सिग्नल, क्षणिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कहलाती है। इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी हो सकता है, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल भी हो सकता है। और एलटीआई सिस्टम पढ़ते हैं लास्ट में, जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, क्या एनालिसिस है, क्या प्रॉपर्टीज है और क्या मॉडलिंग है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, मैकेनिकल सिस्टम की, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में वी विल आल्सो डिस्कस द व्हाट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सिंथेसिस। और इसमें जो है कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, हर्विट्ज पॉलिनोमियल, रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया स्टेबिलिटी के लिए पढ़ेंगे। देखिए कोई भी सिस्टम जो है वो तब स्टेबलाइज होगा जब BIBO क्राइटेरिया फॉलो करेगा, मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क में जब बंधा हुआ इनपुट होगा, बंधा हुआ ही आउटपुट होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनपुट कुछ बंधा हुआ है और आउटपुट कुछ भी आ गया और कितना भी आ गया, तो वो अनस्टेबल है। स्टेबल मतलब बंधे हुए, फाइनाइट इनपुट के लिए फाइनाइट आउटपुट, BIBO मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये सब चीजें इनको जरूर देखेंगे। और इसके साथ साथ बस ये भी तो देखेंगे कि बोडे प्लॉट क्या है और
जो है टाइम रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, ये सब चीजें वी विल ऑल्सो डिस्कस. वी विल ऑल्सो डिस्कस जो है द व्हाट फिल्टर्स एंड सिंथेसिस में जो है सिंथेसिस एनालिसिस में कंपोजिट फिल्टर्स, पैसिव फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स के बारे में वी विल ऑल्सो डिस्कस. तो ये सारे और जो है कॉजर फॉर्म, क्वायर फॉर्म और क्वायर फॉर्म भी पढ़ेंगे और फोस्टर फॉर्म, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे. सो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स हियर. एंड नेटवर्क फंक्शंस और सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है. जैसे एलटीआई सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. कैस्केड क्या होता है, कैस्केड मतलब एक के बाद एक के बाद एक लगा हुआ. सीरीज में, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज पैरेलल में क्या होता है, इस तरीके का एक हाइब्रिड सिस्टम भी पढ़ेंगे. तो कलेक्टिवली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट द सिग्नल्स, सिस्टम्स, नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स. और एक्टिव नेटवर्क होता है जिसमें एनर्जी सोर्स होते हैं. पैसिव नेटवर्क होता है सिर्फ जो लोड की तरह एनर्जी को खा रहा होता है, तो पैसिव लोड होता है. और जो होता है कि लोड वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिसे पावर चाहिए होती है चलने के लिए, लोड कहलाता है, इलेक्ट्रिकल लोड कहलाता है. और इस तरीके से we have discussed all the things like network theorems also, like filters also, like two port networks also, and network analysis and synthesis we will discuss. So it is also, क्योंकि जो भी बड़ी चीज होती है उसमें सारे के सारे सर्किट फॉर्म में ही ये चीजें पढ़ते हैं. So in the coming session also we will discuss all the things well better and well in detail. In this section, in this session, in this presentation, what we have discussed is जो भी अभी चीजें देखी इतना ही जो है अभी जो है इसको देखेंगे इंट्रोडक्टरी थिंग्स में, और बहुत सारी चीजें इसमें पता भी चल गई हैं. सो वी विल डिस्कस फर्दर दैट how these things are also going to implement as an what application part. और तो इस जो फिलहाल इतना वीडियो में इतना ही. दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन.